Okay, so let's talk about electrical conductance. Based on the conductance, we have three types of substances. Like number one, conductance, that is inverse of resistance. Resistance का मतलब difficulty in the flow of current, and conductance का मतलब ease of flow of current. तो conductance क्या है? Conductance is the inverse of resistance, right? If the conductance is very high, 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 7 per ohm per meter, then we call the substance is a good conductor. Okay. Now, if the conductance is between 10 raised to the power minus 6 to 10 raised to the power 4 per ohm per meter, then we'll say the substance is a semiconductor. But if the conductance is very low, in the range of 10 raised to the power minus 20 to 10 raised to the power minus 10 per ohm per meter, then we call the substance to be as a uh, insulator or a non-conductor. Simple idea है. Now one more thing, ये कंडक्टेंस बहुत लो आ रही है, इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे कंडक्टेंस बहुत हाई है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम है. नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी वी में एड एज अ सुपर कंडक्टर विच आर प्रोवाइडिंग जीरो और मिनिमम रेजिस्टेंस कंडीशन. नॉर्मली पहले सुपर कंडक्टर्स में सिर्फ मेटल्स थे हमारे पास जो बहुत लो टेम्परेचर पे बिटवीन 0 to 15 केल्विन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, उस पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते थे. बट नाउ वी हैव सम सेरामिक मटेरियल्स, सम मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड्स which may behave as a superconductor even at a higher temperature up to 150 kelvins. Well, now as far as the conductors are concerned, we have two types of conductors, metallic conductors and electrolytic conductors. So although they have one thing common in them, they both can conduct electricity. Electrolytic conductors क्या है? Those who conduct the electricity in the molten state or in their aqueous solution. जैसे सोडियम क्लोराइड है, सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, लेकिन मोल्टन सोडियम क्लोराइड या aqueous solution of sodium chloride is a good conductor of electricity. So that will is electrolyte. तो मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में एक बात कॉमन है, एंड दैट कॉमन थिंग इज बोथ कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बाकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय कोई और सिमिलैरिटी नहीं है? वी कंपेयर ईच वन ऑफ देम. मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है? तो मेटल्स में हमने चैप्टर सॉलिड स्टेट में बैंड थियरी पढ़ा था टू अंडरस्टैंड द मेटेलिक कंडक्टेंस. वेल, अभी शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि मेटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. जैसे सोडियम है, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नियॉन 3s1. न्यूक्लियस और इनर शेल को हम बोलते हैं कर्नेल, और कर्नेल पे चार्ज होगा पॉजिटिव, और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन is a free electron, right? So this free electron will migrate when the potential difference is applied and the conduction of electricity will take place, right? So like this kernel free electron, kernel free electron, potential difference apply किया, so क्या होगा? Electron enters, these electrons will move, जितने इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन लीव हो जाएंगे. The number of electrons entered is equal to number of electrons left, and that's how the flow of current will be created. So that's called a metallic conductance. Metallic conductance में free electrons electricity conduct करते हैं. What about the electrolytic conductance? तो electrolytic conductance में क्या होता है? हमें पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना पड़ता है, उसमें मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट या एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है. Then we have to place two electrodes, right?
one is cathode, another one is anode, and the electrolyte is filled inside. Let's say I'm taking the molten sodium chloride. Molten sodium chloride, the ions have become free now. Now what happens? Sodium ion go to negative electrode, accept electron, and become sodium metal. Chloride ions go to anode and donate their electron, form dichlorine. So that's how in the solution the electricity is being conducted by the ions. Clear? So first point. Second point, नो केमिकल चेंजेस आर प्रोड्यूस. अभी मेटलिक कंडक्टर्स में मैंने आपको बताया कि सोडियम मेटल्स में या किसी भी मेटल में से, जैसे कॉपर में से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर्ड फ्रॉम वन टर्मिनल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग फ्रॉम द अदर टर्मिनल. नो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विल टेक प्लेस, राइट. नो इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस. ऐसा नहीं है कि मेटल को इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है या मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. इट्स नथिंग लाइक दैट. तो कोई केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस नहीं होगा. हाँ, थोड़ा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, कुछ माइनर फिजिकल चेंजेस ऑब्जर्व हो सकते हैं. लेकिन कॉपर में से आप you use the copper conductor for any duration of time, it's not going to convert it into its oxide or its sulfide or anything else, right? No chemical reaction is going to take place due to electricity passing through the copper wire. Contrary to that, यहाँ पे देखो, जब मोल्टन सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, कंपाउंड डीकंपोज हो गया, एंड इट हैज कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस. तो इसका मतलब केमिकल चेंजेस आर इनएविटेबल, वो तो होंगे. अगर इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो आप केमिकल चेंजेस को अवॉइड नहीं कर सकते. केमिकल चेंजेस विल ऑलवेज टेक प्लेस. नो मास ट्रांसफर टेक प्लेस. मतलब आपने एक यूनिफॉर्म कंडक्टर लिया है, यूनिफॉर्म डायमीटर का कंडक्टर लिया है, तो फॉर वॉट एवर ड्यूरेशन यू पास द इलेक्ट्रिसिटी, इट्स मास ट्रांसफर इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस. अगर आपने इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे मास कम हो जाएगा या यहाँ पे मास बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. बिकॉज एज आई सेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग. तो इट्स जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज क्रिएटिंग. तो नो मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस हियर. इलेक्ट्रोलिसिस होगा. इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से सोडियम निकल के, सोडियम आयंस निकल के कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट. तो इलेक्ट्रोलाइट से मास निकल के किस पे चला गया? इलेक्ट्रोड पे. सिमिलरली क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोलाइट से निकल के क्या बना लेंगे? क्लोरीन गैस. ठीक है. सो मास ट्रांसफर विल ऑलवेज टेक प्लेस, राइट. इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन मेटेलिक कंडक्टर्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटेलिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ेगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो द रीजन इज वेरी सिंपल. ये कर्नेल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कर्नेल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कर्नेल का वाइब्रेशन बढ़ जाता है. कर्नेल का वाइब्रेशन बढ़ गया तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर ऑब्स्ट्रक्टेड. ओके, सो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. In case of electrolytic conductors, on increasing temperature, resistance decreases. See, आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी. वैसे तो आप इस लाइन को रट भी सकते हो, बट आपको एक छोटा सा लॉजिक समझना पड़ेगा. देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स में सपोज हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है, ठीक है. तो जब आयंस मूव कर रहे हैं ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ, तो दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. जब सोडियम आयन एक डायरेक्शन में जा रहा है, क्लोराइड आयन दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दे आर क्रॉसिंग ईच अदर. व्हाइल क्रॉसिंग ईच अदर, the sodium will try to stop the chloride ion and chloride will try to stop the sodium ion. ठीक है. तो that is how they are creating the resistance, right? अब क्या होगा? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आयंस की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी. थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. मतलब जब वो क्रॉस होंगे तो इतनी ज्यादा स्पीड से क्रॉस होंगे that they will get less chance to interact with each other, right? So that's how we can say on increasing temperature electrolytic resistance will decrease. On the contrary, अगर हमने aqueous sodium chloride लिया होता
तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर वन, आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आयंस विल स्टार्ट मूविंग फास्टर. Okay, that's one thing. Second thing, on increasing temperature, the volume will increase. If volume will increase, there is a more space for ions to move. So resistance will decrease. Factors affecting nature and the structure of metal. कॉपर का कंडक्टेंस अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, जिंक का अलग होगा. तो एवरी मेटल इज अ डिफरेंट कंडक्टेंस. सो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, क्योंकि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Obviously, electrical conductance of the metal will depend how many free electrons are present, how many valence electrons are present, and then the temperature. Temperature कम होगा तो kernel का vibration कम होगा, तो electron will get more free path. अगर temperature ज्यादा होगा तो vibration बहुत ज्यादा होगा, तो electrons will get less free path to move. Okay, factors affecting conductions are नंबर वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. आपको क्या लगता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम हो जाएगी? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सी, एक तरफ तो ऐसा लगता है, एक इफ यू सी द वन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मोर कॉन्सेंट्रेशन, इफ देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, द मोबिलिटी, सो नंबर ऑफ आयंस विल बी मोर. ज्यादा आयंस है तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ऐसा लगता है. बट इट्स कॉन्ट्री टू दैट. अगर ज्यादा आयंस होंगे तो एक दूसरे के बहुत पास हो जाएंगे. इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, that means the density is more, they are more denser, they are more closer to each other, so they will obstruct each other, right? एक छोटे से रूम में या एक नॉर्मल रूम में मैं दो लोगों को बोलता हूं कि आपको इस रूम को फटाफट क्लीन करना है. only two people are there, they are doing their job and they are keeping the things on the right place. Contrary to that, in the same room, same normal room, I ask 100 people to clean the room. Will the cleaning be faster? Why? Because everybody is moving here and there. Who is keeping the object where? पता ही नहीं चल रहा, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बस कोई कहीं पहुंच नहीं पा रहा है. तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, ओवरऑल कंडक्टेंस कम हो जाती है. टेम्परेचर, वी हैव ऑलरेडी सीन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस विल इंक्रीज. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट. जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, in case of a strong electrolyte, the ions being produced are more. In case of weak electrolyte, ions being produced are less. अगर मैंने 1 molar HCl लिया है तो मुझे मिलेगा 1 मोल H प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस, मतलब टोटल 2 मोल आयंस मिल जाएंगे. लेकिन अगर मैंने 1 मोल एसिटिक एसिड लिया है तो उसका आयोनाइजेशन होगा हार्डली 2%, 5%. तो 1 मोल एसिटिक एसिड लेने के बाद सपोज 5% भी आयोनाइजेशन हुआ तो 0.05 मोल ऑफ one ion and 0.05 mole of other ion. Only this much, this many ions we will get. So weak electrolyte produce less ions, strong electrolyte produce more ions. Size of the ions, that's an important fact. See what happens, the smaller the ion, easier to move, क्योंकि उस पे जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा. ठीक है, वो नैरो पाथ में से भी मूव कर सकता है. तो as size of ion increases, conductance decreases. That's one fact. Second fact, as hydration increases, conductance decreases. At times what happens, the ion is very small but it is severely hydrated. जैसे साइज ऑफ आयंस में कंपेयर करता हूं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस,
रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, तो साइज ऑब्वियसली बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो लिथियम टू सीजियम हाइड्रेशन विल डिक्रीज, हाइड्रेशन विल डिक्रीज। जब हाइड्रेशन कम हो जाएगा, मतलब जैसे दिस इज अ लिथियम आयन, तो इट इज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल अराउंड इट। छोटा आयन है तो नेगेटिवली चार्ज पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब पूरा का पूरा उसको कंप्लीटली अपने ऊपर बाइंड कर लेगा। अब लिथियम की साइज वाटर में एब्सोल्यूट नहीं होगी, इट विल बी विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो लिथियम, अब अगर हम हाइड्रेटेड आयन की साइज कंपेयर करेंगे तो ऑर्डर ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। तो वी कैन से हियर इफ आई राइट, ये आयंस की साइज है और साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, size of hydrated ion will be lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium। तो ज्यादा हाइड्रेटेड है, सबसे ज्यादा बड़ा हो गया, राइट। तो ज्यादा बड़ा आयन है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। तो हमें लगता है कि लिथियम सबसे छोटा आयन है, तो इसका कंडक्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, और लिथियम टू सीजियम साइज बढ़ रहा है, लिथियम प्लस टू सीजियम प्लस साइज बढ़ रहा है, तो कंडक्टेंस क्या होना चाहिए, कम। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर ऑपोजिट होता है, लिथियम प्लस आयन का एक्वियस सॉल्यूशन में कंडक्टेंस मिनिमम होता है, सीजियम प्लस आयन का एक्वियस सॉल्यूशन में कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में जब साइज बढ़ रही है तो अट्रैक्शन फॉर वाटर कम हो रहा है, दे आर गेटिंग लेस एंड लेस हाइड्रेटेड। लिथियम इज हाईली हाइड्रेटेड, तो उसका जो हाइड्रेटेड आयन है वो सबसे बड़ा है। लिथियम आयन तो सबसे छोटा है, लेकिन हाइड्रेटेड आयन सबसे बड़ा है। तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस में लिथियम एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर आई एम टॉकिंग, लिथियम प्लस आयन विल बी लीस्ट कंडक्टिंग, सीजियम प्लस आयन विल बी मोस्ट कंडक्टिंग सब्सटेंस। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट से हमारा मतलब है, इफ इट इज अ पोलर सॉल्वेंट, राइट, जैसे वाटर, और इफ इट इज हाईली पोलर सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपल वर्ड में समझो, ऑपोजिटली चार्ज आयंस को सेपरेट करने की कैपेसिटी, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस को सेपरेट करने की कैपेसिटी। जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो कैपेसिटी टू सेपरेट सोडियम फ्रॉम क्लोराइड, दैट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा, ऐसा सॉल्वेंट आयंस को अच्छे से सेपरेट कर देगा, आयंस को प्रॉपरली सेपरेट कर देगा, तो मूवमेंट ऑफ आयन विल बिकम इजियर, राइट। कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है या पोलैरिटी कम है तो वो आयंस कम बनेंगे, सब्सटेंस का आयोनाइजेशन कम होगा। और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो सब्सटेंस का आयोनाइजेशन ही नहीं होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, सोडियम क्लोराइड को अल्कोहल में डिसॉल्व करता हूं और सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में डिसॉल्व करता हूं, वाटर में डिसॉल्व करता हूं, इट गेट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड बिकॉज वाटर इज अ हाईली पोलर सॉल्वेंट। ओवर एंड अबाउ इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई, तो वो पूरे सोडियम क्लोराइड को आयोनाइज कर देता है, पूरे सोडियम क्लोराइड को आयोनाइज कर देता है। एट द सेम टाइम इट कीप्स देम वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इथेनॉल इज अ लेस पोलर सॉल्वेंट, उसकी पोलैरिटी कम है, तो सोडियम क्लोराइड 100% आयोनाइज ही नहीं होता, राइट। तो कम आयन बनेंगे तो कम कंडक्टेंस होगा, सब्सटेंस वही है सोडियम क्लोराइड, लेकिन सॉल्वेंट बदल गया। और बेंजीन में डाला तो सोडियम क्लोराइड का आयनाइजेशन ही नहीं होगा, Na प्लस और Cl माइनस आयंस ही नहीं बनेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, प्लस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर थिक सॉल्वेंट है तो इट ऑब्वियसली इट विल क्रिएट द रेजिस्टेंस फॉर द आयंस टू, so that's the difference between metallic conductors and electrolytic conductors. This table can be a subjective question, but the points we have discussed conceptually
are definitely the conceptual multiple choice question for exam. True and false, assertion and reason, which of the following match the column, इस तरह के क्वेश्चंस में इन पॉइंट्स को इसमें से इस टेबल में से मल्टीपल फैक्ट्स को उठा के क्वेश्चन बन सकता है. रादर देन मगिंग अप दिस टेबल, understand each and every point we discussed.